हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो in the previous chapter we looked at life processes involved in the maintenance function in a living organism. So हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस फंक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So there we had started with a notion we all have that if we see something moving, so हम देखते हैं अगर कोई चीज़ मूविंग होती है so it is alive, वो जिंदा होती है. Some of these movement are in the fact the result of a growth. So ये these movement मतलब एक result of growth में हमें दिखती है. एज इन प्लांट्स में भी हमें ये दिखती है. और सीड जॉमिनेट्स, एक पहले सीड पहले जॉमिनेट होता है देन फिर ग्रो होता है. एंड वी सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर अ कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, मतलब वो बड़ा होने लगता है. इट पुशेस सॉइल असाइड एंड बिकम आउट, और वो इतना ज़्यादा ग्रो मैच्योर हो जाता है, मतलब ग्रो हो जाता है कि उसके जो रूट्स होते हैं बाहर आ जाते हैं. सॉइल असाइड एंड कम आउट. बट if its growth were to be stopped, these movement will not happen. So अगर हम उसकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करेंगे तो वो हम मूवमेंट नहीं रोक सकते हैं. some movement as in many plants, animals and plant, some plants are not connected with growth. So कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं इन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमारे कनेक्टेड नहीं होता हमारे विथ ग्रोथ से. मतलब a cat running, children playing on swings, buffalo chewing cud. These are not movement caused by growth. So इससे हमारा जो growth, मतलब आप बड़े नहीं होंगे, मतलब growth नहीं बढ़ेगी आपकी. Why do we assess such visible movement with life? A possible answer is that we think of a movement as a response to change in the environment of the organism. So हम ऐसा सोचते हैं मतलब कि मूवमेंट से एक रिस्पॉन्स होता है जिससे कि चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. सो यहाँ पे जो कैट जो रन कर रही है क्योंकि उसने एक चूहा देख लिया. सो नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक of a movement as an attempt by a living organism to use changes in their environment to their advantage. So कि advantage लेने के लिए ये सब कर रहे हैं. Plant grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Buffalo chew cud to help break up tough food, so to able to digest it better. When bright light is focused on our eyes, when we touch a hot object, we detect the change and response to it with the movement in order to protect yourself. सो हम जब हम कुछ हॉट ऑब्जेक्ट छू लेते हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं. वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मतलब आप खुद को बचाने के लिए. इफ वी थिंक अ बिटर मोर अबाउट दिस, इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज केयरफुली कंट्रोल. सो जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो काफ़ी केयरफुली कंट्रोल होता है. ईच kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk about a class, friends in class, we whisper rather than shouting loudly. So हम अगर किसी से हमें बात करना हो क्लास में, सो हम विस्पर करते हैं, ऐसा नहीं कि चिल्लाने लगते हैं. सो ऐसा बताया गया यहाँ पर क्लियरली. The movement to be made dependent on the event that is triggering it. Therefore, such control movement must be connected to recognition of various events in the environment, followed by the correct movement in response. In other words, living organism must use system providing control and coordination. So, living organism को मस्ट यूज़ करना चाहिए एक कुछ सिस्टम जिससे कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सके. In keeping with the general principles of body organization in multicellular organism, specialized tissue are provided to are used to provide this control and coordination activity. So कुछ हमारे specialized tissue होते हैं
जिससे कि हमारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं. So our next topic is animal nervous system. In animals, such control and coordination are provided by the nervous and muscular tissue, which we have studied in class 9, जो हमने class 9 में पढ़ा था. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. So ये काफ़ी हमारी dangerous situation बन जाता है. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? So हमें कैसे मालूम चलता है कि हमने hot object छुआ है? All information from our environment is detected by the specialized tips of some of the nerve cells. So ये हमारी एक nerve cell जिसमें हमारा ये न्यूक्लियस है बीच में, देन ये डेंड्राइट, दैट इज एक्सॉन जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बीच में, and that is nerve ending जो लास्ट में, and that is cell body. These receptors are usually located in sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue, and so gustatory receptor will detect taste. So ये हमारे डिटेक्ट करते हैं, लाइक जैसे कि अगर हमें काफ़ी ज़्यादा हॉट हमने छू लिया तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं. सो हमें यहीं से मालूम चलता है. वाई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिसेप्ट स्मेल. सो हमारे गस्ट्री रिसेप्टर होते हैं और हमारे टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ अ डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स. सो ये जो हमारा नर्व एंडिंग के बाद जो डेंड्रिटिक टिप, मतलब ये डेंड्रिटिक टिप होता है आगे वाले का, जो अगला हमारा नर्व सेल होगा, सो उससे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं. दिस इम्पल्स travels from a dendrite to the cell body and then along the axon to its nerve end, and at the end of the axon the electrical impulse sets off release of some of the chemicals. These chemicals cross the gap or the synapse and start similar electric impulse in a dendrite of the next neuron. So ऐसे ये जो डेंड्राइट होता है दूसरे नर्व एंडिंग में ऐसे सिग्नल्स भेजता है, ऐसे ऐसे करके भेजते रहते हैं जिससे कि जो हमारा सिग्नल्स हो जल्दी पास हो सके और काफ़ी ज़्यादा हम जल्दी से अपना हाथ हटा सकें. दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ nerve impulses travel in a body. Similar synapse finally allow delivery of such impulses from neurons to other cells, such as muscle cell or gland. It is thus no surprise that nerve tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons. तो इसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो हमने यहाँ देखा, जो डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एंडिंग है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं. and is specialized for conducting information via electrical impulses. So ये हमारे information भेजते हैं via electrical impulses from one part of the body to another and identify the parts of the neuron where information is required. Second, through which information travel as an electrical impulse and where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. So is there a difference in how sugar and food taste if our nose is blocked? If so, which might have been happening? Read and talk about the possible explanation of these differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? So यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने. So हमारा अगला टॉपिक है what happens in a reflex action. So reflex is a word we use commonly when we talk about some sudden action in response to something in our environment. We say I jumped out of the way. The bus reflexly, मतलब जो हम हाथ हटाते हैं तुरंत, मतलब जो हम अगर छू लिए कुछ हॉट तो, एंड इसी चलते हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आई पुल्ड माई हैंड बैक ऐसे, or I pulled my hand from the flame reflexively, or I was so hungry my mouth started watering reflexively. What exactly do we mean? A common idea in such example is that
वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, सो हम वो काम कर देते हैं बिना सोचे, क्योंकि काफ़ी जल्दी से हम एक्शन लेते हैं, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन. Yet these are the situation where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such a situation? So हम ये आगे देखेंगे. Let us consider this further. Take one of our example, touching a flame urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How do we respond to this? So one seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. Therefore move our hand. So इस चलते हम अपना हाथ हटा लेते हैं तुरंत. An important question then is, how long will it take to think us all this? So कितना समय लगता है? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक. सो ये आंसर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सोचते हैं, मतलब कि हाँ मेरे को हाथ हटाना है ऐसे. इफ nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of some impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. को काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन से पास होके जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. इफ दिस इज द केस, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकली अरेंज न्यूरॉन्स. सो काफ़ी ज़्यादा हमारे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं हमारे. इट सेट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ आवर स्कल. सो ये हमारे फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल में हमें मिलते हैं इन ब्रेन, and receive signals from all over the body which it think about before responding to. So ये कुछ करने से पहले ये सिग्नल्स भेज के हमें एक्शन बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to a nerve coming from various parts of the body. So ये हमारे interconnected होगा, मतलब कि हमारे हैंड एंड मूवमेंट हमें जो करना है उन पार्ट से हमारे कनेक्टेड होगा, हमारे बॉडी पार्ट से. सिमिलरली, इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, नर्व मस्ट बी कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सो इसके लिए हमारे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कनेक्टेड होने चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारा जो भेजेगा न्यूरॉन उससे. इफ ऑल दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे दो इनफ टाइम फॉर अस टू बी गेट बर्न. अगर हमें ज़्यादा समय लग गया तो हमारा हाथ जल जाएगा. हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ अ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ अ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल इन अ सिंपलर वे. सो यहाँ पे भी यही बताया कि जो हमारा जो नर्व सेल्स होंगे उन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे जो मसल सेल्स होंगे, क्योंकि अगर हम अपना हाथ नहीं हिलाएंगे तो हमारा जो हाथ जल जाएगा चलते, और वो भी सिंपलर वे में. द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल ऑफ द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कॉम्प्लिकेटेड. किसी और काफ़ी जल्दी भी हो जाना चाहिए, वरना हमारा हाथ जलने की संभावना है. सच अ कनेक्शन इज कॉमनली नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. और ऐसे हम एक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. वेयर should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve. The best place of the nerve would be at the point where the first meet of each other, जहाँ पे हमारा पहला कांटेक्ट होगा. लाइक हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो उसी मतलब जिस मिली सेकेंड में हमने छुआ उसी मिली सेकेंड में हम छोड़ देंगे, मतलब अपना हाथ हटा लेंगे, इतनी जल्दी हमारे सिग्नल्स पहुंच जाते हैं. Nerve from all over the body meet in a bundle in a spinal cord. So यहाँ में स्पाइनल कॉर्ड में इनका बंडल होता है ये नर्व सेल का. ऑन द वे टू द ब्रेन तक जब वो सिग्नल पहुँचाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन अ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ. सो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं. ऑल्दो इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन. सो फिर हमारे ब्रेन में वो जाता है सिग्नल्स. ऑफ कोर्स reflex arcs have involved in animal because the thinking process of a brain is not fast enough. So इतना fast enough नहीं है.
thinking part. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So हमारे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं है जिससे कि वो थिंक कर पाए. सो इट इज़ quite likely that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of a two thought processes. So ये काफ़ी important हो जाता है हमारा reflex arc in the absence of a thought process. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. So हमारा जो reflex arc होता है still काफ़ी efficient होता है क्योंकि उससे हम क्विक रिस्पॉन्सेस कर पाते हैं, अपने हाथ को बचा लेते हैं जलने से. सो आप ये देख सकते हैं पहले हमने रिसेप्ट किया जो भी हमें पेन मिला, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन भी है. सो यहाँ पे गया, फिर रिले न्यूरॉन है, ये इफेक्टर इन आर्म है, देन ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड देन ये मैसेज टू ब्रेन पहुँच गया हमारा. सो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन. Is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not, since we know that we are thinking beings. So हम एक सोचने वाले human beings हम लोग. Spinal cord is made up of nerve which supply information to think about. So spinal cord से हमारे जो thinking part होती है उनके bundles होते हैं, nerve bundles होते हैं हमारे. Thinking involves more complex mechanism and neural connections भी होते हैं. These are concentrated in the brain, और ये हमारे concentrated होते हैं हमारे brain में, which is the main coordinating center of the body. So हमारा जो main coordinating center of the body हमारा brain होता है. The brain and spinal cord constitute the central nervous system, which is also known as CNS. So ये हमारा CNS का part होता है. They receive information from all parts of the body to and integrate it. So ये हर जगह हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके फिर वो कोई ना कोई एक्शन लेते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकें, एंड इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते. लाइक जो हमारा हार्ट बीट है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू द मसल. सो जो हमारे जो मैसेज आया है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आया है स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, उस मैसेज को फिर से भेजना पड़ेगा मसल्स के पास, क्योंकि फिर रिएक्ट भी करना है हमें. दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल. सो ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट करते हैं मसल के साथ. द कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from a spinal cord. So ये हमारे peripheral nervous systems होते हैं. इसमें हमारे cranial nerves होते हैं जो हमारे निकलते हैं from brain and spinal cord arising from the spinal cord. So ये हमारे spinal cord में भी होते हैं. The brain thus allows to think and take action based on the thinking. So हमारा brain action लेता है जो भी हमने सोचा है, मतलब जो भी हमारे electrical signals आए हैं from different parts of the body. As you will expect, this accomplished through a component design with the different parts of the body, parts of the brain. Brain responsible for integrating different inputs and output. The brain has three major parts of the region, namely the forebrain, midbrain and the hindbrain. So हमारे brain के भी तीन parts होते हैं. First is forebrain, second is midbrain, third is hindbrain. So देखते हैं. The forebrain is the main thinking part of the brain. So जो हमारा forebrain होता है वो main thinking part होता है. It has a region which receive sensory impulse from various receptor. So ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स, मतलब फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर, मतलब हर जगह से रिसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसेप्ट करता है. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग.
स्मेल, साइट एंड सो ऑन। सो ये स्पेशलाइज होता है लाइक हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट एंड सो ऑन। There are separate areas of association where there is a sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptor as well as with the information that is already stored in the brain। और उससे भी हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारा पहले से पढ़ा हुआ है एंड जो नया इंफॉर्मेशन आया उससे भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, मतलब जैसा भी सही लगता है ब्रेन को। मतलब बेस्ड ऑन all this a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas where control movement of voluntary muscle, for example leg muscle and so ऐसे हमारा जो ब्रेन एक्शन लेता है लाइक कौन सा हमें हाथ हटाना है, लाइक हमने अगर छू लिया तो ऐसे पहले से ही इंफॉर्मेशन पड़ा होता है एंड उस समय जो इंफॉर्मेशन आता है ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड टू थ्रू ब्रेन के पास, सो उसको मालूम चलता है कि अच्छा यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, देन यहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। सो वो उसी तरह फिर रिस्पॉन्ड करता है। However, certain sensations are distinct from seeing, hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of a center of association with hunger, which is in a separate part of a forebrain. So जो हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है, सो ये भी एक पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है कि हमारा जो हंगर का मतलब हमारा पेट भर गया है ऐसा बताने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन। सो हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा ह्यूमन ब्रेन का ये फर्स्ट आ गया, हमारा फोर ब्रेन है, दैट इज सेरिब्रम। ये क्रेनियम सेल स्कल होता है हमारा, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज मिड ब्रेन। सो ये हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइंड ब्रेन होता है हमारा। हाइंड ब्रेन में हमारा पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम होता है एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। Studying a label diagram of the human brain, we have seen that the different parts of have different functions. So हमने देखा भी कि different parts हमारे different function होते हैं उनके। Can we find out the function of each part? So हम देखेंगे different specific functions हम आगे। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. सो हम देखेंगे अब रिफ्लेक्स के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। आर माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड एज वी लाइक विदाउट और मीनिंग टू, लाइक हमारे मुंह में पानी आ जाता है अगर खाना हम देख लेते तो। आर हार्ट बीट विदाउट और थिंकिंग अबाउट इट, सो हमारा दिल धड़कता है। सो ये एक काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन होता है। इनफैक्ट वी कैनॉट कंट्रोल दिस एक्शन ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट देम और इवन इफ वी वांट टू डू सो, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। दैट आर इनवॉलंटरी एक्शन। डू वी थिंक, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ पीपल। सो जो हमारा आँख का जो पीपल होता है मतलब वो छोटा हो जाता है, लाइक जब हम डार्क से लाइट में आते हैं, लाइक और हम लाइट से मतलब धूप से घर में आएंगे तो हमारा प्यूपल बहुत बड़ा हो जाता है, देन फिर घर में आएंगे तो डार्क में तो छोटा हो जाता है, चलते हमें कुछ दिखता नहीं है। एंड द थॉट ऑफ अ एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। सो इस पर हमारी कोई कंट्रोल नहीं होती है। मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन सो एंड हाइंड ब्रेन। सो ये हमारी कंट्रोल की जाती है बाय मिड ब्रेन and the hind brain. All this involuntary action, including blood pressure, salivalization, and vomiting, are controlled by the medulla in the hind brain. So ये कंट्रोल की जाती है by the जो medulla में होता medulla है हमारा hind brain में। Thinking about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. So these are possible due to the part of a hind brain that is called cerebellum की वजह से ये हमारा पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि हमारा जो पोस्चर होता है उस चलते
उसको सही रखता है ये हमारा सेरिबेलम. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो इसे ये हमारा एक काइंड ऑफ पोस्चर सही करता है बॉडी का हमारा, एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए. इमेजिन व्हाट वुड हैपन if each of these even failed to take place if we were not thinking about it. So इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर ये सब नहीं होता तो हमारे ब्रेन में. Then next topic is how are these tissue protected. So a delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, need to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. So ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक बॉक्स में ऐसे फिट रहता है. इनसाइड अ बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक. सो इससे हमारा जो शॉक हमें मिलता है अगर हम कहीं गिर गए, सो उतना ज़्यादा चोट नहीं लगेगा. इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, यू फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे अगर पीछे आप टच करेंगे दैट आपको एक बम्पी सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दिस इज़ अ वर्चुअल कॉलम और द बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. और ये हमारा एक काइंड ऑफ बैकबोन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. सो यहाँ पे हम देखेंगे. सो फार वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू. अभी तक हमने बात किया नर्वस टिश्यू की एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन सेंड इज अराउंड द बॉडी. सो कैसे ये इंफॉर्मेशन भेजता है बॉडी के पास, मतलब ब्रेन के पास. प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कन्वे डिसीजन टू द मसल फॉर एक्शन. सो एक्शन लेने के लिए भेज देता है. इन अदर वर्ड, when the action or a movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. How do animal muscle move? So हम यहाँ जानेंगे मसल सेल कैसे मूव करता है. When a nerve impulse reaches the muscle, the muscle fibers must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of a movement at a cellular level is the muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. So the next question is how do the muscle cells change their shape. So यहाँ पे हम जानेंगे कि मसल सेल्स अपने शेप कैसे चेंज कर लेता है. द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट. सो ये हमारे केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है. Muscle cell have special proteins that change both the shape and the arrangement. So इससे हमारा shape and arrangement of a cell change हो जाता है. In response to nervous electrical impulse, when this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cell a shorter form. So इससे हमारा जो muscle cell की मतलब वो shape change हो जाता है और छोटा हो जाता है. Remember when we talk about the muscle cell tissue in chapter class 9, there were different kinds of muscles such as voluntary muscle and involuntary muscle. So दो तरह के मसल होते हैं हमारे, एक voluntary and एक involuntary. Based on what we have discussed so far, what do you think about the differences between these would be? So देखेंगे